So how is this dictated is some terminology which you need to know to solve. There are numericals based on this, on conduction. So the temperature gradient is created, okay? So both the sides, the temperature is different, and therefore there is a rate of change of temperature across. So if this is, for example, X length, and the temperature difference which has got created between this side and this side is theta, then the temperature gradient which gets created is d theta by dx, which means as x increases, you have change in temperature delta theta by. So जैसे जैसे आप आगे जाओगे, obviously it will be minus because the temperature falls from hot to cold. So delta theta upon delta x is called as the temperature gradient which got created because of uh, direction of flow of heat. Okay. Now, what is a law that governs the heat flow? Is the law of thermal conductivity. Law of thermal conductivity. What does this law say? If you have a slab, or this could be a rod, anything, if you have a slab like this, okay, this is your slab. This is law of thermal conductivity, and these are two opposing faces. So once the back side of this is at theta 1, and this side is at theta 2. And there is an energy transfer because theta 1 is greater than theta 2. So energy transfer is taking place between the two opposite faces, okay, which are at this. So this is at higher temperature. Okay, so this is the higher temperature, this is the lower temperature. So there is a gradient, as in water like moves from higher place to a lower place. There is a gradient which gets created, right? So higher to lower. So higher temperature to lower temperature, the heat travels. So if you want to find out how much heat is transferring in a time interval delta T, so let's say delta Q is the amount of heat that travels from the higher side to the lower side in time delta T, then the rate of heat flow is delta Q by delta T. What is noticed as per this law, that the rate of heat flow from higher to the lower temperature side is proportional to the area of the cross section through which, so this area is being referred to, okay, perpendicular to the heat flow. Heat is flowing like this, and the area is this one. Okay, heat तो ऐसे जा रही है, लेकिन area की जो बात कर रहे हैं वो ये वाली कर रहे हैं. So it is proportional to rate of heat of the second thing, the rate of heat flow depends is the temperature gradient itself. So which means you're moving from a higher to lower temperature. This is your, and if the length, if the breadth of this through which you move, where there is a gradient is delta x, for example. So delta q is also proportional to gradient of the temperature between the opposite faces. So overall, the rate of flow of heat is proportional to the gradient of the temperature, which is common sense also, like we've seen a metallic rod. And also, it depends on how much area is exposed, available. जो ये heat conduction के लिए area available जो है, right? So ये area, वो पीछे वाली साइड है ये, और ये फ्रंट साइड नजर आ रही है जहाँ रिसीव हो रही है. So overall, the delta Q by delta T, the rate of flow of heat becomes equal to K A theta 1 minus theta 2 upon delta X. And this is called as the coefficient of thermal conductivity of the material. And this could be different for a brick. This could be different for a quilt. So our house walls are made up of multiple layers, cement and all of that, right?
and that decides how much heat will enter our houses. Okay. Okay, so material specific hota hai. So it may depend on if this is some Western country where there is a lot of snow, they may fill it with thermally insulated material, yahan pe. More fillings, more layers may be there so that heat is not able to flow in at rapid rate. Insulation will be required. So thermal conductivity should be very poor, whatever material is being used. लक्कड़ के मकान होते हैं, for example, right? Foreign में, right? All of them. So, Wooden house. so one is this law of thermal conductivity, which you have to know, and this thing is also written as 𝜃1 minus 𝜃2 upon delta x is also written as dt by dx. So this is that temperature gradient which we already studied. So this is a temperature gradient, right? There is a minus sign attached with this because it shows that it flows from higher to lower temperature. So this rate of heat flow is also known as heat current in some numericals. So you will call it heat current. It's like battery being connected to a metal, and then current electrons start flowing from this side to that side. So that, right? So you can have a refrigerator, for example, and the refrigeration. So if you have a refrigerator door, right, that ordinary refrigerator door is has some surface. So there is a door of refrigerator. Okay, this has some thickness of its own, and it has a size, some area associated with it. So inside, this is your, for example, atmosphere, the outer side, and inside side of the refrigerator is this. So say inside the temperature is 15 degree centigrade, okay, and the outer surface is 37 degrees, right? And so there is a rate of heat conduction also taking from atmosphere to the refrigerator. Depends on क्या material आपने वो लगा रखा है to prevent slowest flow of heat. तो जो material के ऊपर जो refrigerator होता है उसके ऊपर जो पेंट करा जाता है और उसकी जो इनसाइड वॉल होती है सब प्लास्टिक की वगैरह वगैरह, all of that is the heat moving inside, and then that heat obviously when we study thermodynamics is extracted and thrown out from behind. Thermodynamics में you have to do work सेब को ठंडा रखने के लिए, लेकिन अंदर घुस रहा होता है heat from the external environment. Thermal conductivity, rate of thermal conductivity is this Ka 𝜃1 minus 𝜃2 by x. Important to understand. So if you have high thermal conductivity, then you're a good conductor. If you have low thermal conductivity, you will be an insulator. So generally you will select the material based on whether you need insulation or you actually want the heat to flow inside. Right? So you want the heat to flow inside, buy materials with high thermal conductivity. If they have low thermal conductivity, so pure metals, for example, thermal conductivity is very high. So they are good conductors of heat. Okay, so since the analogy is very close to application of potential, which is electric potential of a battery, and heat current word has been used. So if you notice the complete formula, we can also say if heat current H, which is dq by dt, the rate of heat of flow, is equal to Ka dt by dx. ये हमने लिख लिया. So we can also say that the dt is the change in is the applied reason, the difference in temperature between the opposite sides, because of which the current flows. So this becomes your current. I'm referring to Ohm's law. So this is your current.
this is sorts of a potential which was responsible the higher temperature to lower temperature, the heat current flow. So this is what flows. This is what is the reason for the flow. Okay, this flows, and therefore the balance of the quantity is known as RT, is also known as thermal resistance. Thermal resistance to conduction. Okay, so material is going to offer thermal resistance. It's basically how much opposition. So in Ohm's law, V is equal to IR. So this is the reason why the current flows. This is the current flows, and this is the opposition to the current. Okay, the resistance. So a material also has a thermal opposition. So it says, I won't let you flow through me. Right. So it is written like this, that RT, which is the resistance, should be equal to V by I in Ohm's law parlance. But V is theta1 by minus theta2, because that is the reason, temperature difference, why the current flows. So this is V, and divided by I. What flows is H. Okay, the current, heat current, which is the rate of flow of heat. So your thermal resistance R is given by V by I. V is that heat temperature differential, sorry, and this is the rate of flow of heat. So some analogy with electricity is drawn. Heat is flowing because of potential gradient and stuff like that. So मिलता जुलता होता है थोड़ा सा, right? And if you notice, in 10th standard, they also teach you R resistance is given by rho LA. Right? Where this is the resistivity of the material, copper, length of the conductor, and area of cross section. area of the cross section. Similarly, if you notice, thermal resistance of a rod. So you're given a rod. Now the length of the rod is L, area is A, and there is it offers a thermal resistance. So that RT is also given by L upon K by A. Only difference is here rho comes on numerator, but here the K, thermal conductivity, comes here. So thermal resistance, if you have to calculate, can be K into calculated. L by A हाँ? नहीं होना चाहिए? क्या? K into L by A, RT. नहीं, K इसमें डिनोमिनेटर में आता है, अच्छा क्योंकि कंडक्टिविटी होती है ना, तो 1 by K becomes resistivity. ये अच्छा है ना, तो ये RT. So if you have to think through this, one formula obviously which is so clearly articulated is the rate of flow, जो हमने ऊपर पढ़ा, area dependent and all of that. Then the second terminology you come across is the thermal resistance, which can be written like this, second. And third is something which is to do with dimensions of specific to a मतलब एक कॉपर दे दिया कुछ मटेरियल, सीमेंट दे दिया, बोला जी सीमेंट की थर्मल कंडक्टिविटी ये होती है मटेरियल। अब सीमेंट की लेंथ इतनी है वॉल की, और वॉल का क्रॉस एरिया सेक्शन इतना है, बताओ हाउ मच ऑपोजिशन विल इट प्रोवाइड टू द heat flow. So you can say, okay, I know the length of the wall, I know the area of cross section of the wall, I know its cement is made up of what thermal conductivity. You can find the thermal resistance to conduction. So this is your thermal resistance. It is not electrical resistance. It is your thermal resistance to conduction. Okay. Now, like in electricity, you had parallel and series combination. Similarly, in these questions also, you can have series and parallel combination. So let's say we start with a series combination. In a series combination, what you have is, one is this shape and it is connected to another metallic rod, or जो भी material है, makes no difference. Area of cross section अलग है, और इसका ये second material है. So the length of this particular thermal resistance is L2. Then the second thermal resistance is this.
This is this is K2, say the conductivity property of the material. Sorry, ये L1 नहीं होना चाहिए था, ये L1 होगा, ठीक है. This is K1, and this is your so you have heat current which is flowing in series. If you remember, the current remains same through both the resistors. So the H, the Q will remain the same, the heat flow which is coming in. So if you have heat current being calculated as delta Q, the rate of flow of heat. So this is your hot end, which is the left side. Okay, this is your hot end. So this is some material, and this is some other materials, but the heat is flowing one after another. And the other end is your TC. So which means your temperature gradient is TH minus TC divided by L1 plus L2, delta X, sum of these two. But the reason why it flows is TH minus TC. So your H can be written as, so if you consider the junction, which is this, and say at the junction the temperature is T, even if in a resistor, if you have a battery connected, which is the reason why it flows, then the battery's potential is split between these two. Okay, so this potential is the common current multiplied by its resistance, the common current multiplied by its resistance. So total potential of the battery is split between the, so something very similar is being done. Thermal resistance is being used. I, we know, is the H. So if we calculate H only through the first part, okay, then you can calculate T. Okay, let's say this is delta Q, H is equal to delta Q upon delta T is equal to temperature difference. Okay, and so this is the potential divided by the resistance of the first part. Okay, so the resistance of the first part, we can call it R1 or whatever you want to name it. Let's say this is R1. So this is, sorry, R2. ये H है, ये वाला part हो गया, right? So this is your resistance. This is your voltage. V by R gives you the current, H. So you know TH minus T is equal to R2 into H. Now let's look into the slab number 2. The slab number 2 is the current is flowing from here to here. Same current is flowing, but the potential is different. So this time H can be written as delta Q by delta T. Same current flows in, but the reason is this is at higher and this is at lower. So T minus TC. This plays at a higher potential, this is at lower potential. So current flows from higher to lower potential, T minus TC divided by R2. If you see, these are in series one after another. So both the H are equal, and if you solve the first and the second equation, what you will get is, sorry, R1, हमने R1 terminology use कर रही है. Okay? That overall H, which is a heat flow, is a function of TH minus TC, which is the overall potential, which is existing across the two resistors. Here the battery is connected. So overall potential from here to here is V, same as battery. The total resistance, since they are in series, is R1 plus R2. So the total current should come out to be V upon R1 plus R2. And similarly here also, the total potential upon total resistance. But this time R, we have to be careful of that we will use the terminology thermal resistance. So this is the series rule for, so the equivalent resistance of two slabs connected to each other is R1 plus R2. So if you're given many slabs, one and then a second and then a third and stuff like that, it really makes no difference to you, because you know the sum of all these two is what you need to worry about. If you know the extreme temperatures here and here, subtract, get this, you add all these thermal resistances and you divide, you will get the rate of heat flow, which is a common current flowing through. So this is your equivalent thermal resistance. So if you are clear on Ohm's law, series and parallel, this becomes a relatively simple exercise for you. Eh?
ओके। सेम ही है ना, बिल्कुल कोई फर्क तो मतलब है नहीं। नहीं, मतलब जैसे अभी सीरीज में है, ऐसे पैरेलल में भी होगा क्या? हाँ, पैरेलल में भी होगा, पैरेलल में जाएंगे फिर सीरीज और पैरेलल दोनों होगा। बिकम अ सर्किट, हीट हम्म। सर्किट। So हीट let's सर्किट। put let's put slabs बस in हीट parallel सर्किट now. के अंदर वो। अच्छा। हाँ, पूछो पूछो, you want to say something? नहीं नहीं, मैं तो कहती इलेक्ट्रिसिटी जैसा ही है। हाँ, electricity है। Those who have clarity on Ohm's law will find it very simple. So this is your situation, and this is another situation, and this is your so these are the two slabs. They are connected across the, so two parallel resistors connected across the same battery, which means, so here the temperature is TH and the temperature is, this is one slab, this is a second slab. We have kept the length to be same. So you can know R1 is given by L upon KA1. Material is different. So K1, A1, length is same. R2 is equal to L K2, A2. You know, the H1, which is a rate of heat flow through this one, will be given by what? It will be given by TH minus TC upon R1, and H2 will be given by the separate, because it's a separate iska current, but voltage across both of them is same, which is this. तो दूसरे में भी H2 is TH minus TC upon R2. So this is what it is. जो Two टोटल separate currents are रेजिस्टेंस flowing. होगी, Huh? जो टोटल हीट फ्लो होगी, Huh. That will be sum उन of दोनों these का two. सम होगा। Yes, ठीक right? Because this is the total current which is entering I1 है। plus I2. It splits, right? At this junction. यहाँ टूट जाता है करंट। तो अगर ये टोटल 5 एम्पियर था, 3 यहाँ चला गया, तो 2 एम्पियर इधर चला जाएगा। सो द टोटल, बट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा होता था कि 1/R1 प्लस 1/R2 होता था दैट टोटल इज रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बट द टोटल करंट रूल डजंट चेंज, राइट? V इज इक्वल टू IR हाँ। होता है। हाँ जी। R is still the equivalent resistance which you're referring to as R1 R2 divided by R1 plus R2. अच्छा। I think you're referring to the equivalent resistance, right? हाँ। I'm applying Ohm's law. I'm saying this अच्छा is my ठीक है। current number one, this is my current number two. तो मेरे मेरे को टोटल करंट निकाल लेता हूँ, जो क्योंकि मेरा बैटरी से जो करंट है पैरेलल में स्प्लिट हो जाता है, तो मेरा टोटल करंट तो भाई H1 प्लस H2 है। ये मेरा करंट गया, थोड़ा सा यहाँ आ गया, थोड़ा सा यहाँ आ गया, स्प्लिट हो जाता है। H1 प्लस H2 कर लेता हूँ मैं। तो दैट बिकम्स TH माइनस TC upon 1 by R1 plus 1 by R2, right? And therefore, this whole thing which you see, this is the potential. The reason हाँ why it जी। flows is difference in the temperature. This is the current. And therefore, if I note this part, this is 1 by R. तो इसको मैं नीचे ले जाता हूँ. So my overall equivalent resistance will be how much? 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. This is what you were referring to. हम्म। So if you have many rods in parallel, slabs in parallel, so one slab and then the second slab and the third slab, and they are connected, right? You can, length is same, mind you, length is same, क्योंकि हमने L सेम लिया ना सबके अंदर। हाँ। दोनों को बीच में एक ही, दोनों का लेंथ L है। तो you can straight away do this equivalent thermal resistance and खत्म। अच्छा। इसमें just be very careful when you do series combination. Although I've drawn it like this, ये जो area of cross section है ये वाला, ये कॉमन है at the point of joining. ये जो एरिया लेना है ना, ये वाला, हाँ जी। ये एरिया, यहाँ तो दोनों के एरिया अलग हो गए ना ये वाले, तो यहाँ पे एरिया अलग लेना होता है, लेंथ अलग ओके। लेनी होती है। इसमें लेंथ सेम लेनी होती है, एरिया अलग लेने होते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। ओके, सो लेट्स से यू हैव अ, इफ यू हैव टू फाइंड equivalent, uh, so
So say you have now the topic is equivalent thermal conductivity. So you have multiple materials. So we are referring to equivalence of K. जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है, रो 1 रो 2। अब किसी ने बोला है कॉपर का पीस और आयरन का पीस जोड़ दिया, इसकी रेजिस्टिविटी अलग है, तो सो रो 1 एंड रो 2। Okay, so R1 is equal to rho L1 by A1 and say R2 is equal to rho 2 L2 by A2. If this was one single material, what would be its equivalent resistivity? So you said no problem, these are in series. So R1 L1 by A plus R2 L2 by A2. This is copper, this is aluminium is equal to rho had it been a single material. So length will be L1 plus L2, right? Area is same incidentally, okay? They are connected to each other, so area is same, A. You said, okay, ये काट देते हैं. तो रो कॉमन जो है वो आएगा रो 1 L1 plus रो 2 L2 divided by L1 plus L2. This is my one material. If you would have used, could have given me the same result instead of giving me two. So I'm doing the same thing now for the थर्मल कंडक्टिविटी विच इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। एक बंदे ने बोला यार तुमने यहाँ पे ईंट लगाई है, उसके बाद तुमने लकड़ लगा दी है, तो एक मटेरियल नहीं है जो सेम ही रिजल्ट दे सकता है। बोला जी हाँ जी, वो ढूंढते हैं फिर, तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे आप? तो बोला ठीक है, देखो आप मटेरियल चाहे जैसे मर्जी लगा लो, एक ईंट आप ये वाली लगा लो, स्लैब बोल लो, ईंट बोल लो, जो बोलना है बोल लो, ये लो, दूसरी दूसरी लगा लो, राइट? फिर आप तीसरी लगा लो, फिर आप चौथी लगा लो, राइट? तो ऐसे कई लगा लिया आपने, एरिया सेम है बाय द वे, ओके। नाउ हियर द टेम्परेचर इज θ1, हियर इट इज θ2, θ3, θ4, θ5, दिस इज द डिफरेंट मटेरियल, K3 K4, ऐसे आपने जितनी एन तक लगा लिया आपने। एंड द लास्ट का जो स्लैब था उसका जो वो था ये, सो दिस इज θn, ठीक है? और इनकी लेंथ है L1 L2, बिल्कुल सेम जैसे रेजिस्टेंस के अंदर होता है, यहाँ मैंने दिखाया कॉपर एल्यूमिनियम का, जो सिर्फ थर्मल। तो इनका इक्विवेलेंट सीरीज में है ये सारे, यू कैन सी दे आर वन आफ्टर अनदर, दे आर इन सीरीज। सो आर इक्विवेलेंट इज एनीवे गोइंग टू बी R1 plus R2 plus R3, and the one material which will be equivalent of all of them, जैसे कि यहाँ दो ऐड हुए, so K which will be equivalent K will be, ये तो रेजिस्टिविटी है, हम तो बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी की, तो ऊपर आ जाता है L1 plus L2 से लेके एल एन लेंथ वाले जितने भी हैं, L1 plus L2 L3 L3, ये एल एन है, तो इन सबकी लेंथ ऐड कर लो। अब एक ही मटेरियल है जबकि इन सबकी अपनी थर्मल कंडक्टिविटी थी, दे आर डिफरेंट मटेरियल्स। सो आई एम जस्ट फाइंडिंग वन मटेरियल विच वुड हैव सर्व्ड द सेम पर्पस टू कवर दिस टोटल लेंथ। एक ही मटेरियल यूज कर लेते हैं, उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए थी? ये वैल्यू होनी चाहिए थी। So what it tells you, if you have n slabs, अगर आपके पास n स्लैब है सेम इक्वल लेंथ के, तो आप सबकी l बराबर ले लो और n इंटू एल कर लो इसको, और यहाँ पे भी l डाल लो सबको, तो l कॉमन आ जाएगा। तो ये 1/K1 प्लस 1/K2 से लेके 1/Kn हो जाएगा, तो l कट जाएगा, तो आपका इक्वलेंट जो सेम लेंथ के मटेरियल्स हैं, अगर उनकी इक्वलेंट सिंगल मटेरियल आपको यूज करना है, तो आप n द जितने भी स्लैब हैं वो टोटल डिवाइडेड बाय 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 से लेके 1/Kn, ये हो गया K. So this is one material which you can use instead of using n slabs of equal length of different thermal conductivity. This is one single material which will serve the purpose. So this I will call it K equivalent.
Okay, so this is K equivalent. दो होते तो क्या हो जाता, यहाँ दो डाल लो। K equivalent is equal to 2 upon 1 by K1 plus 1 by K2. So this will become 2 K1 K2 upon K1 plus K2. So if you have two materials which are in series having same length and same area of cross section, the equivalent thermal conductivity, even though they are themselves made up of different conductivity, is given by this. ये एनसीईआरटी के स्कोप से बहुत आगे तक है, बट डोंट वरी, यू शुड नो दिस, पता होना चाहिए कि हो क्या ठीक रहा है। है ये, राइट। थोड़ा सा मतलब मेंटली एग्जॉस्टिंग भी है, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग भी है, दिस इज टू मच इन्फॉर्मेशन एंड टू सून, बट वंस यू गेट हाँ। अकस्टम्ड और बैठ जाएगा दिमाग में तो फिर इतना मुश्किल नहीं लगेगा। अभी लगेगा थोड़ा सा कि भैया कौन कौन से फॉर्मूले कर लिए हमने, कितने कर लिए, कोई इतना मुश्किल होता नहीं है। वंस दिस दिस इज इन योर हेड की what are we dealing with, we're dealing with series, parallel, equal length, equal area, फिर वो आदत बन जाएगी करने की, जैसे करंट में होता है ना, सेम ही हो जाता है फिर ये, makes no difference at all, right? So don't worry about, sometimes मैंने बहुत कम केस देखा जहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी निकालने को बोला, नहीं बोलते, बट थर्मल कंडक्शन में ट्रांसमिशन ऑफ हीट के अंदर बोलते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, दे डू। सो दिस इज योर इक्विवेलेंट single material being used. ये तो easy था, series and parallel, this was straightforward, right? हाँ। This part was straightforward. What was slightly complex was this equivalent for series. Similarly, you can have multiple materials of same area being kept on one another, and but they are in parallel, which means so you build a wall like this, you keep one slab. Actually तो यही होता है जो parallel की अगर मैं बात करूं, आपने एक ईंट पहले ये रखी, फिर आपने दूसरी ईंट रखी, ये आपकी दीवारी बन रही है एक तरह से मकान की, ये तीसरी ईंट रख दी आपने, और फिर ये चौथी ईंट रख दी, ये आपका मकान का एक वो बन गया, दीवार बन गई, और इस साइड आपका धूप आती है और ये मकान के अंदर हो आप, राइट। तो ये बेसिकली आपका एक साइड हो गया थीटा 1, ये हो गया आपका थीटा 2। तो हीट जो है बाहर से अंदर आती है जब गर्मी पड़ती है, तो ये दीवार है, लेकिन दीवार में आपने करा क्या, आपने अलग अलग मटेरियल, ये ईंट अलग बना ली, ये ईंट अलग बना दी, ये ईंट अलग बना दी, और ये ईंट अलग बना दिया आपने, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन इज एवरी ईंट विल हैव इट्स ओन फ्लो, all ईंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। दिस हैज सेम पोटेंशियल डिफरेंस एज दिस, बिकॉज सबका टेम्परेचर थीटा 1 है ना यहाँ पे, सब तो धूप पे है, सो थीटा 1 to थीटा 2, बट थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफरेंट। किसी ने बोला यार तुम इतना इतना मुश्किल काम कर रहे हो, व्हाई डोंट यू स्ट्रेट अवे put one material and finish it off. Why do you want to put so many? So you said, okay, the total current which is passing through all them is H1 plus H2 plus H3 tilde Hn. Said, okay, yes, because these are in parallel, and the same battery, same temperature difference is being used. So what is the single material which you could have used to convert all of this? So you said, okay, I know the temperature differences which exist are common all across. So I'm going to write this as uh, equivalent of K1, A1, and the heat formula dq by dt, θ1 minus θ2 upon L, सबकी लेंथ है। ये हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था, the rate of flow of heat, right? Law of thermal conductivity, the first law we studied, ये वाला, right? This is what we studied, law of thermal conductivity, Ka θ1 minus θ2 divided by delta x। तो आपने वो लगा लिया इसके अंदर, बोला ठीक है जी, ये सब में going to add all of them, and this will be K1 A1 upon, so K2 A2 L, and this is θ1 minus θ2 plus K3 L3 A3 upon L, and this is θ1 minus θ2. So individual currents are being written in that format of law of thermal conductivity. So सबको लिख दिया, और आपने बोला कि ठीक है जी, ये
मेरे को मिल जाएगा इससे कॉमन 𝜃1 माइनस 𝜃2 कॉमन आ जाएगा मेरा सब में से, और सबकी लेंथ तो बराबर ही है, राइट? सो लेंथ इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ देम, सो दैट गोज अवे, एंड के 𝜃1 माइनस 𝜃2 सब में से कॉमन आ गया, और K1 A1 L प्लस K2 A2 अपॉन L प्लस K3 A3 L ऐसे KN AN/L इज इक्वल टू द टोटल। तो एक मटेरियल होता सारा का सारा, उसका K होता, और K इक्विवेलेंट इस साइड लिख देता हूं मैं उसका फॉर्मूला, यही, और उसका एरिया सबका सेम है, ए, sorry, area is different for each one of them. So A1 plus A2 plus A3 plus A4 and is equal to KA 𝜃1 minus 𝜃2 divided by L। एक साइड अगर एक ही ये होता तो मैं ऐसे लिख लेता सबको, okay? So your K equivalent, so ये दोनों कट गए, L भी कट गए, so your K equivalent comes out to be K1 A1 plus K2 A2 plus K3 A3 KN AN divided by A1 plus A2 till AN. So this is one single material. If different materials are connected in parallel and you want to find a single equivalent material which will serve the same purpose, then it is K1 A1, basically sigma K A divided by sigma A. I is equal to 1 to n, I is equal to 1 to n, सबको ऐड कर लो, K1 A1, उसके अंदर जो है, जो ऊपर वाला करा था हमने, उसके अंदर इट वाज स्लाइटली डिफरेंट, इट वाज दिस, उसमें सम ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय L1 K1, तो ये थोड़ा सा अलग है, दिस इज K1 A1। तो दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको बेसिकली, राइट, कि क्या करना है। अब मान लो ऑल द एरियाज आर सेम, now all these areas are equal, so equal area slabs are there, equal, so A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to AN is equal to A, so K1 plus K2 सारा ऐड हो जाएगा KN multiply by A divided by so many areas getting added NA, so this will go and this will become K1 plus K2 KN upon N, so this will become your K equivalent. So if you have two equal slabs, right? So what will you do? You will say they're made up of two different materials. Then it is K1 plus K2 divided by 2 because you just have two, right? Whereas in the other case, you had two K1 K2 by K1 K2 as the K1 plus K2 as the K equivalent when they were in series. तो ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कई बार यूज हो जाती है इन सम न्यूमेरिकल्स। जनरली तो लॉ लगते हैं, बट ये भी लॉ से डेरिवेशंस ही है, ये भी कोई मतलब वो नहीं है कि कोई एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसके अंदर यही है कि एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक इक्विवेलेंट मटेरियल रादर देन ओम्स लॉ, तो ये बहुत मटेरियल के ऊपर फोकस है इसके अंदर। ठीक है जी, हम्म। थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है दैट आई अंडरस्टैंड, इट इज स्लाइटली ओवरवेलमिंग टू absorb, but you if you थोड़े absorb से it you can solve a JEE mains numerical very easily। इसके हल्के नोट्स भेज दो ना। हाँ, बहुत सारे नोट्स हैं, सारी SLA में लिखा हुआ है मैंने, कहीं से ने खुद नहीं बनाई फिजिक्स। ओह ठीक। सारी की सारी लिखी हुई है, खोल लेना दिख ठीक। जाएगी। एनसीईआरटी में कुछ कुछ पोर्शन नजर आ जाएंगे, ये जो है मटेरियल वाले, ये SLA में नजर आ जाएंगे। हाँ ठीक है। So let's see some of the numericals which are associated with this chapter. Most of in your school they will not ask you to this level, that they will go to this level of asking you uh, material का equivalent बताओ, I doubt very much, but if you know a formula, extra formula, it helps you immediately solve a JEE mains problem। सीधा फॉर्मूला फिटिंग है और कुछ नहीं होती, कोई ट्रिकी नहीं है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन करने से that clarity will emerge that this is the thermal resistance and stuff like that। नहीं,
transmission of heat. Let me show you some. Just think in terms of Ohm's law and your job is done. Please don't think in any other terms. Ohm's law. What flows is heat. Charge, right? Charge flows. Here heat flows. When dq by dt is there, rate of flow of charge, it becomes current. So when heat flows at a certain rate, it becomes heat current. ईंट है, मटेरियल है, तो इसका भैया वो होगा थर्मल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जगह वहां पे रेजिस्टिविटी वर्ड यूज होता है. हेयर वी डील विद कंडक्टिविटी. तो रो की जगह 1/k होता है यहाँ पे यूज. This was conduction, flow of तो मिला ही नहीं. हाँ, let's do some solve numericals on this. If you have Ka d theta by dx clear as the heat current, you can do this in 1 second. Simple harmonic motion. कोई ढंग का क्वेश्चन मिल जाओ भाई. 𝐂𝐿𝑢𝑠𝑎c. 𝐂𝐿𝑢𝑠𝑎c. Social Louis Gay-Lussac.
सेकंड लॉ केमिस्ट है। ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहेंगे, तो केमिस्ट है। लुसाका, लसाका। ये लो जैक बोल रहे हो ना। किसी बुक ने ना को ठीक से पकड़ा नहीं है टॉपिक को। थर्मल प्रॉपर्टीज को भी उसके अंदर मिक्स कर दिया है। मिल गया। हाँ जी, दिख गया। देखें जरा क्या ये क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन नजर आया है फिलहाल। मेडिकल एंट्रेंस का है। डजंट लुक। नेक्स्ट पेज बट वी कैन कम पर बैक। आपको पता है जो नीट एग्जाम है वो पीसीएम वाले भी दे सकते हैं। दे तो सकते हैं, बायो में क्या करोगे? हाँ, वही मैं क्या। ओके। पैरेलल है। इट्स अ पैरेलल रॉड सिचुएशन। पैरेलल रॉड बिकॉज ये पैरेलल है। क्यों लिखा नहीं है एट देयर बोथ एंड्स? तो बैटरी मतलब दोनों को पैरेलल में है। अच्छा। दोनों का कॉमन है ना टेम्परेचर। हम्म। So first step, you will identify whether they're in parallel or series. Then you will close your eyes and think कि दो रेजिस्टर हैं, उनकी लेंथ मुझे पता है, मुझे उनकी स्पेसिफिक हीट भी दी हुई है। ओ, तो दे हैव अ स्पेसिफिक हीट आल्सो। स्पेसिफिक हीट। ओके। अच्छा, बोथ आर इक्वल। द रेट ऑफ हीट लॉस एंड द हीट ड्यू टू कंडक्ट, इफ द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन इज इक्वल, दोनों का जो लॉस ऑफ हीट है रेट, वो बराबर है। फर्स्ट फिजिकली थिंक कि हो क्या रहा है। पैरेलल हो गए, दोनों का हीट लॉस बोल रहा है, रेट ऑफ हीट लॉस। स्पेसिफिक हीट का व्हाट विल यू यूज इट फॉर? तो व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट? समथिंग और दी अदर। स्पेसिफिक हीट तो बेसिकली इट्स कितना हीट स्पेसिफिक अप हो होती गया है। ना, एम एस थीटा, एम हम्म। एस डी थीटा, हीट एब्सॉर्ब्ड। लेकिन ये तो कंडक्शन बोल रहा है, और कंडक्शन के केस के में यू राइट फर्स्ट द क्यू
through first rod, then write Q due to the second rod. H निकाल लो ना, दोनों का दो both are in parallel. स्पेसिफिक हीट का तो कोई यूज ही नहीं है, टोटली मिसलीडिंग. So this is the case, right? So this is your slab 1, rod 1, and this is अगर your rod 2. ठीक है, Yeah. The वैसे अगर मैं temperature इंट्यूटिवली difference. सोचूं ना, इसका आंसर सी होना चाहिए. हाँ ठीक है, करेक्ट है. करके देख लेते हैं ये ए है या सी है, देखते हैं कौन सा आता है. ये तो दोनों ही गलत है, मिसलीडिंग है. सो दिस इज व्हाट इज क्यू फॉर दिस. द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू दिस इज हाउ मच. um, के K1. ए T1 माइनस T2 अपॉन एल. हाँ जी. सेम लेंथ है क्योंकि क्यू इज इक्वल टू हम्म, K2 A2 T1 माइनस T2 बाई एल. हाँ, नाउ दिस इज इक्वल, दिस इज गिवन टू बी इक्वल. तो फिर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए इसका आंसर. आंसर खत्म. तो ये तो मेडिकल एंट्रेंस का था, चलिए इसे सीबीएसई का लिखा हुआ था, ठीक है. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 2005 का, लेकिन बड़ा बचकाना सा भी है क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला फिटिंग ही है, क्योंकि पीएमटी में आता वही है, प्री मेडिकल टेस्ट में मतलब. सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल व्हाटएवर ब्ला ब्ला. सो यू हैव टू कैलकुलेट, आई थिंक सेम मटेरियल है, विल कंडक्ट द मोस्ट हीट, मतलब उसका थर्मल रेजिस्टेंस लीस्ट है या हीट करंट हाईएस्ट है, सब कुछ सेम होने के बावजूद. सिर्फ डायमेंशंस का फर्क है. लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस इन द dimensions of the material. ठीक है, यू पुट इट इन फॉर्मूला, वही जो ऊपर लिखा हुआ है K A T1 माइनस T2 बाई एल. आई थिंक बोथ आर ऑल आर मेंटेन्ड एट द सेम. सिर्फ डायमेंशनली अलग करते जाओ उनको, तो जिसका A डिवाइडेड बाय L हाईएस्ट होगा, हाँ. Q जिसका हाईएस्ट है वो जीत जाएगा. वही बात हो गई ना भाई. A जिसका सबसे हाईएस्ट है, ए देखो इसका 2R आ रहा है, 4R हो गया. हम्म, ये नीचे डिनोमिनेटर में बढ़ा देगा, तो ये तो नहीं हो सकता, ये लग रहा है मुझे. ये फोर मेरे को फोर हो ये लग जाएगा रहा है. और ये हो जाएगा. As per the intuitive knowledge, this is the correct answer. ठीक है. वैसे हाँ, ए वन ज्यादा आ जाएगा. फर्स्ट फर्स्ट स्टेप, यू हाँ. ट्राइंग टू गेट अ ग्रिप ऑन वेरिएबल्स. ओके. The variables, you understand how the variables, what impacts whom. Dimensions impact the rate of flow. That सबसे कम clarity, सी का होगा वैल्यू क्यू की. that is correct. That is correct. ओके. Q1 calories per second. It has to have a dq by dt has हम्म. to have a dimension, right? तो Can Q2 be. निकाल लेते हैं पहले, हाँ. फिर रेशो प्रोपोर्शन. तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मटेरियल भी सेम है. ओके. Temperature difference.
टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर कांस्टेंट लिखा हुआ इन लोगों ने तो। ठीक है, तो 1 मिनट। टेक योर टाइम, स्टार्ट। मेरी पेंसिल मेरे को दिक्कत दे रही मेरे को। विच पेंसिल? द एप्पल वाली। अरे हाँ, मैंने जो डिवाइस बोला है वो ले लो भाई, बहुत अच्छा होता है वो, मजा आता है उसे आप लिखने में। सही। अरे, वे टू अरे गुड। एप्पल पेंसिल 15,000 की है। वो डिवाइस 7,000 का था। अरे लेजिटिमेटली मेरे फोन से भी महंगी है। हाँ बताओ। एप्पल की अरे ये कोई छोटे चीज भी। छोटे नोट्स लेने के लिए यूज होती है, जैसे ऑफिस में आप काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत नोट करना आपको। जब आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने हैं ना, तो आपको डिवाइस चाहिए प्रॉपर लिखने वाला। ये छोटे छोटे प्रोफेशनल्स। नोट्स लेने के लिए, पूरा दिन लिखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, डायग्राम बनाओ, तो डिवाइस यूएसबी से जोड़ो और शुरू करो, ये तो लिखने मैं में कैसे मजा आता है। रेडियस डबल कर दिया। 15,000 में तो इतना अच्छा आ जाता, 20 साल चलता। वैसे एप्पल का शेल्फ लाइफ बहुत होती है इनके प्रोडक्ट्स की। अरे उसके लिए है नहीं ना, जिस पर्पस के लिए वो बना हुआ है। हाँ, बस बहुत तो। फर्क है। इट वर्क्स विद एंड्रॉइड ऑल्सो, कैन यू बीट दैट? यू कैन एंड्रॉयड, कनेक्टेड अ अच्छा। मोबाइल फोन। वो वो लेंथ मैक भी से भी डबल जुड़ कर जाता दी। है, विंडोज से भी जुड़ जाता है। अच्छा, सही है। लैपटॉप से जोड़ो और काम चालू, बड़ा लिख सकते हो। हम्म, द वन आई बॉट इज 69,000। लैपटॉप। नो, द डिवाइस ऑन विच आई राइट। ये तो महंगा। बट 6 साल भी तो बीत गए, खरोंच भी नहीं आई है। इसको मैंने सबको ओके, एक कांस्टेंट ही मान लिया है। Q2 निकालना है राइट, तो हाँ, Q1 लिख Q2 लो, मेरा पहले डिवाइड 4। कर लो। हाँ, Q1 होगा हमारा। 4 4 टाइम्स आ रहा है। हाँ, 4 टाइम्स है। तो इट इज 4 टाइम्स है। नहीं नहीं, एक सेकेंड, बी। लेंथ डबल नहीं करी? हाँ, लेंथ सब डबल कर दिया। 12 तो लिख ये दिया कट था जाएगा नीचे। ना, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। हाँ, 4 R² है ना। हाँ, डबल। 4 R²। यस, 2 R। ये 2 नीचे भी था एक। हम्म। तो ये नहीं, ये हो जाएगा फिर। Q2 = 2 टाइम्स Q1। करेक्ट, दैट हाँ। इज करेक्ट। क्या? ये सीबीएसई 2003 में दे अटैक्ड ना मटेरियल पे। एक और काम का फॉर्मूला है जो यूज होगा बहुत, वो भी याद कर लेते हैं। दैट इज अ कंपाउंड वॉल, इंपॉर्टेंट। कौन सी वॉल? कंपाउंड वॉल मतलब, जैसे वॉल बनती है रियल लाइफ में, एक मटेरियल फिर दूसरा मटेरियल, तो उसके जो दो वॉल के जो मटेरियल होते हैं, उनके जो बीच में इंटरफेस होता है ना, जब वो जुड़ते हैं, उसका कॉमन टेम्परेचर वो कितना होता है। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर पता हो तो इट सेव्स यू लॉट ऑफ टाइम।
अब ये वो क्वेश्चन है, थोड़ा। डिफरेंट मटेरियल ओके। एंड यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट, जस्ट सी वेदर दे आर पैरेलल और व्हाट। दे वुड बी पैरेलल। लिखा था भाई, दे हैव इक्वल थिकनेस एंड थर्मल कंडक्टिविटी, लिखा ही नहीं कहीं पे है। स्लैब है। इट्स अ कंपाउंड स्लैब, ओके, सो कंपाउंड स्लैब पता होना चाहिए क्या है। A compound slab looks like this. I think it is series. सर वैसे एक कंपाउंड अगर एक स्लैब है हाँ। तो ये एक ऐसे ही होना चाहिए, फिर इसके ऊपर एक एक। I think the compound का मतलब, because I just saw this topic, और मुझे लगता है ये पहले तो ये भी याद कर लेना है, ये वाला फॉर्मूला भी आना एक चाहिए मिनट। अपार्ट फ्रॉम मटेरियल। हीट फ्लो कहाँ से होगी, तो यहाँ से भी हो सकता है भाई। बट कंपाउंड है ना, तो उसको अगर मैं ऐसे तो लंबा हो जाएगा। I think नेचर compound is डायग्राम not बनाता हूँ मैं। हीट कहाँ से फ्लो हो रही है, हीट सर कौन से सरफेस से कौन से सरफेस पे। यहाँ से और फिर यहाँ से। व्हाट, डायगनली, व्हाट डू यू मीन। नहीं डायगनली नहीं। हाँ, या तो यूं फ्लो कराओ, तो नीचे या से ऊपर। ऊपर। हाँ तो फिर तो वो भी यही हुआ ना, यही। सीरीज होएगी वो भी। हाँ, ऐसे रखोगे तो एल। एक के बाद एक ही आ रहा है ना। सेम अच्छा। करंट इज हीट, करंट इज फ्लोइंग। इफ यू मेक इट like this, then they are connected between, then they're parallel. If you draw it like this, ये parallel वाला arrangement है, क्योंकि they are connected between the same temperature ना। इसका जो मटेरियल है, इस वाले का, ये वाला, ये भी थीटा 1 पे है, ये भी थीटा 2 पे है, ये नीचे वाले स्लैब ये भी थीटा 1 पे है, ये थीटा 2 पे, ये तो पैरेलल हो गया। हाँ। बट इफ यू कीप इट लाइक दिस, देन टॉप सरफेस इज एट थीटा 1 एंड द बॉटम सरफेस, तो ये जो इंटरफेस है ये वाला, हम्म। इसका अलग टेम्परेचर है, इसका अलग टेम्परेचर है, गिर रहा है टेम्परेचर, ग्रेडियंट है। जबकि इस वाले केस में लेफ्ट टू राइट में, द दिस वॉल इज एट सेम टेम्परेचर एंड दिस वॉल इज एट द सेम टेम्परेचर। तो ये मतलब सीरीज में हो या पैरेलल में? मेरे हिसाब से तो कंपाउंड मींस दिस। एक मिनट, आई थिंक दिस। फिर वो ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगी स्लैब? नहीं नहीं, बिकॉज आई विल टेल यू द रीजन, एक मिनट। कंपाउंड वर्ड का वैसे हमने मीनिंग पढ़ा नहीं है, बट आई विल शो यू अ डायग्राम। कंपाउंड स्लैब। हाँ, आई विल शो यू अ डायग्राम। हीट लेट मी शो फ्लो यू ना? डायग्राम ना। हाँ हाँ, ये डायग्राम देखो, क्योंकि ये आना चाहिए, यू हैव टू मेमोराइज दिस। व्हाट आई थिंक इन्होंने भी कह रहे हैं पैरेलल है। अरे नहीं लिखा कहीं पैरेलल भाई, होगा तो पता तो चल जाएगा, बट लुक एट दिस, व्हाट इज द अच्छा, टाइटल, हीट फ्लो थ्रू अ कंपाउंड वॉल। एंड लुक एट द वे दे हैव अरेंज्ड इट। दिस इज So सीरीज। heat is passing through them, where they are getting connected, they have a common temperature. So ये तो सीरीज हुआ ना, पहले इसके हाँ थ्रू तो पास ये हुई भी। करंट, फिर इसके थ्रू पास हुआ। ये पूरी वॉल जो है, एक साइड की एक टेम्परेचर पे है, फिर दूसरी साइड की, दो मटेरियल आ गए, दो टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में दो मटेरियल, दो सीरीज में रेजिस्टर R1 एंड R2, बोथ ऑफरिंग डिफरेंट थर्मल रेजिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से कंपाउंड का मतलब सीरीज होता है, वन आफ्टर अनदर। ठीक। And if you have to find, for example, in a compound wall, what is the common temperature where they are meeting? ये वाला, direct, you can find it directly ठीक है। by writing the rate of heat flow is equal. So थीटा निकल जाएगा उसमें। ये देखो ना, थीटा 1 माइनस थीटा हो गया पहले का हीट फ्लो, दूसरे का हो गया थीटा माइनस थीटा 2, सेम एरिया। अब करो इसको, so assume it to be in series of different material, equal thickness, equal thickness है दोनों की, मतलब लेंथ इज सेम। एरिया भी देना ठीक है। चाहिए था, तो ए सेम रखते हैं, फिर हम क्या रखें, इक्वल हम्म। थिकनेस, तो यही हुई ना कि ये एल है, ये वाला,
और ये भी एल है, ये दोनों एल है, तो एरिया सेम ही रख लेते हैं। ओके। तो सीरीज का जो फॉर्मूला था सेम स्लैब्स का, वो था 1/K1 + 1/K2। एन ऊपर एन लिखना था, दो है। n/k1 + n/k2। नहीं नहीं, 1/, K equivalent in series was n divided by 1/K1 + 1/K2 till 1/Kn, ओ, assuming they are of same area and length। हमारे दो हैं। अच्छा, तो n2 है। N2 है हमारा, टू लिख लिया, ठीक है। और एक वन की है अपॉन के के वन के के लिख वन लो, अपॉन K1 के की क्या जरूरत है, +1/2K। 1/2 के। हाँ, तो फॉर्मूला याद होता है तो मतलब हो जाता, 1/। सॉरी, 1/। Just the fact that he knew the formula, you understood it well, you could have solved it. तो 2K LCM ले लो, ऊपर ले जाओ 4K, हम्म, नीचे आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 2। 4K ऊपर जाएगा पहले तो, अरे एक मिनट। नीचे LCM 2K, वो 2K ऊपर चला जाएगा, 4K बन जाएगा, नीचे सिर्फ 3 आएगा। तो ये आ जाएगा ये ऊपर चला के जाएगा। अपॉन के अपॉन 3। नहीं, गलत कैलकुलेशन है। दिस 2K विल गो ऑन द टॉप। 4/3। 4k हाँ बाई 3। हाँ, यस। सो आते हैं क्वेश्चन, मतलब जिसके अंदर यू विल हैव अब काफी कुछ इंफॉर्मेशन हो गई है। हम्म असल अभी भी वो उल्टी आ जाएगी मेरे को, जिसमें थोड़ा थोड़ा टाइम स्टाइलिश करना लगेगा, पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लगता है। और कंपाउंड वॉल का जो मैंने कॉमन टेम्परेचर निकालने को बोला, दीज आर ऑल शॉर्ट ट्रिक्स। इफ यू जस्ट मेमोराइज 5-6 फॉर्मूलाज इन ट्रांसमिशन ऑफ हीट, हम्म, सीरीज पैरेलल तो खटाखट सिर्फ फॉर्मूले से निकल जाता है, वो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अच्छा, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री जैसा। हाँ, समथिंग लाइक दैट। टू मेनी फॉर्मूलाज, फिट होना हाँ, चाहिए जाके वहां पे कि भाई ये तो मेरे को वाला थोड़ा है। सा डाइजेस्ट करना है इसको थोड़ा। प्रैक्टिस से हो जाएगा वो तो, हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ। हो जाता है थोड़ा लेकिन फॉर्म। फाइनली। ओहो, अब यहाँ ये कंपाउंड वॉल का जो मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, और वही हुआ। हाँ, जंक्शन टेम्परेचर मतलब वो जो जहाँ मटेरियल्स मीट करते हैं उसको बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन यही वाला जो कॉन्सेप्ट है कंपाउंड का, इस जंक्शंस पे हीट कॉमन टेम्परेचर निकालना, क्योंकि थ्रू आउट ग्रेडियंट है। देखो पैरेलल में तो देयर इज अ सिंगल ग्रेडियंट, 𝜃2 𝜃1 - 𝜃2 डिवाइडेड बाय L, खत्म। नाइस डायग्राम। ठीक है। एक तरफ रिजर्वायर है 300 डिग्री पे, सो दिस इज अ सोर्स ऑफ हाई टेम्परेचर, and the other side is maintained at 0 degree, exactly like this side is maintained at कितना, 300। ये फर्नेस हम्म, का टेम्परेचर है, ये 0 डिग्री पे है, ये जंक्शन का टेम्परेचर है। सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, दैट्स ऑल। ये दो मटेरियल ठीक है, इनका एरिया मालूम है, इनका ये निकालना है, ये जंक्शन, यहाँ कितना थीटा है। है। 𝜃1 मालूम है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे एक्सट्रीम राइट पे। ठीक है। डोंट थिंक दीज आर मटेरियल्स, फर्नेस एंड आइस बॉक्स, दीज आर TH and TC।
हाँ ठीक है। बाकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल है, ट्रिपल है, के की वैल्यूज भी दे रखी हैं दोनों की। तो जंक्शन टेम्परेचर। ओके। थोड़ा फास्ट लग रहा होगा बट ठीक है, टॉलरेट इट। हाँ ज्यादा नहीं हो रहा बहुत लंबा खिंच गया चैप्टर ये वाला। है। फ्लूइड से भी ज्यादा बड़ा हो गया। हम्म। तो खत्म हमें करना है इसको। अभी हमें वेन डिस्प्लेसमेंट करना है। उसके बाद हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हाँ, थोड़ा सा मेरे को इस कंसेप्ट को absorb करना चाहता हूँ मैं। क्या एब्जॉर्ब हो रहा है भाई? नहीं मैं प्रैक्टिस करूँ इसकी। फॉर्मूला फिट करना है फिलहाल तो। सारे वैल्यूज लिख मतलब, लो ना, K1 L1 हम्म, सारी लिख लो। लेट द कॉमन टेम्परेचर बी थीटा। L1 L2 A2 K1 K2 और वैल्यू डाल दो। लेट द कॉमन टेम्परेचर बी थीटा। और फॉर्मूला देख लो कंपाउंड वॉल का, उसके अंदर लेफ्ट साइड को क्या लिखा है, थीटा 1। तो इसको थीटा 1 लिख लो। 300 डिग्री को थीटा 1 भी मालूम है, थीटा 2 भी मालूम है, सारी वैल्यूज लिख लो। ये दी हुई है थीटा L1। स्टील की अलग लिख लो, स्टील। कॉपर की अलग लिख लो। और फिट कर दो जाके, कुछ क्या करना है। फॉर्मूला और ये टेम्परेचर थीटा 1 लिख लो क्या इसको। हाई टेम्परेचर को लिखना 3। कॉपी फ्रॉम हेयर ना, लेफ्ट साइड थीटा 1 300, ठीक है। थीटा 2 0 डिग्री। हाँ।
D1 D2 मतलब वो होता है क्या? हम्म। जो D1 और D2 है। हाँ दिया होगा। ये लेंथ दी तो है इनकी, विड्थ L1 हाँ, L2। ठीक। सारे फिट हो रहे हैं वैल्यूज? सब दिया हुआ है ना? हम्म। दिया है मतलब देर इज नथिंग टू बी, करना नहीं है, सीधा वैल्यू डालते जाओ हाँ, और करते जाओ। ये डिनोमिनेटर कैसा आ रहा है 15 और ये ये तो वो है L। K1/D1 K2/D2। अच्छा। हम्म। अच्छा ठीक है। बट ये केल्विन्स में है, क्या कौन पता सा? क्या। अच्छा ये इस बात का देखना है कि द टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन, यू कैन राइट इट इन क्या केल्विन में? कुछ नहीं। थ्योरी में? नहीं, वो जो थर्मल कंडक्टिविटी दे रही है उसकी यूनिट्स केल्विन में है, ठीक है। ओ बेटा, दिस हैज टू बी कन्वर्टेड। शायद। बट उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, वैसे भी हमें K1/L1 ही तो निकालना है, प्लस K2/L2। वैसे आंसर मेरा 42 डिग्रीज आ रहा है। जस्ट शेयर द आंसर, मुझे खुद नहीं पता क्या आंसर आंसर है।
इसका आंसर आ रहा है 44.43। एरिया ट्वाइस लिया है। ए नहीं, क्यों दिया है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर रॉड। वो वो नहीं लिया। फॉर्मूले में एरिया आ रहा है कहीं पे? एरिया से आ नहीं रहा ना, तब भी नहीं लिया। हाँ ठीक है। ए- अच्छा ओ, यहाँ में इसमें एरिया सेम है इस फॉर्मूले में, राइट? तो हमें यहाँ पे हम्म, एरिया वन और एरिया टू भी लेना पड़ेगा सॉल्व करते हुए। अच्छा। तो ये कट जाएगा तो हमारा ये सॉल्व जो होगा, तो सॉल्व करने का मेथड तो यही है हम्म। कि हम K1 A1 θ1 - θ अपॉन L1 इज इक्वल टू K2, इसका डबल है इस स्टील का, राइट? तो ये A1 बाय, इसको A2/2 ले लूं मैं, ये A2 ले लेता हूं मैं बाय L। ये एरिया इसका हाफ है ना लिखा है। स्टील का जो हाँ। एरिया है, एक मिनट पढ़ लेते हैं, स्टील का एरिया डबल है शायद। एरिया ऑफ स्टील इज डबल, तो लेफ्ट साइड इज डबल, तो 2 ले लेता हूं मैं यहाँ पे, सॉरी 2। तो अब मैं ये A2 काट लेता हूं, तो मेरा एक एक्स्ट्रा ये आ रहा है ना, 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा मेरे इस। तो वी विल हैव टू एडजस्ट द फॉर्मूला। 2K1 θ1 - θ अपॉन L1 L2 इज इक्वल टू K2 थीटा थीटा -θ2। थीटा इज अ कॉमन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो 2K1 θ1 L2/L1 -2K1 θ L2/L1 is equal to K2 θ -K2 θ2। और अब मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ। हम्म। 2K1 θ1 L2/L1 प्लस K2 θ2 is equal to K2 प्लस 2K1 θ L2/L1। हम्म। तो 2K1 θ1 L2/L1 प्लस K2 θ2 डिवाइडेड बाय K2 प्लस 2K1 θ1 2K1 θ1 और क्या है साथ में, L2/L1। हाँ, L2/L1 इज इक्वल टू थीटा। तो फॉर्मूले को एडजस्ट करना था मेरे ख्याल से, आई थिंक भी हमने एडजस्ट नहीं करा। ये 2 क्या? एक्स्ट्रा आ गया ना यहाँ पे। हाँ। इसमें तो एरिया सेम लेके इन्होंने दोनों तरफ से एरिया काट दिया, यही फर्क था। तो अब जो करेंगे न्यूमेरिकल, वी विल टेक केयर कि क्यू सेम रख लेंगे जंक्शन पे, क्योंकि जो हीट एंटरिंग है इज इक्वल टू हीट, जो करंट एंटर हो रहा है भाई सेम करंट है ना। कॉमन हाँ। पोटेंशियल है जो कॉमन आ रहा है दो रेजिस्टर के बीच में, ये वाला, ये आपकी बैटरी है, इस जगह का पोटेंशियल बोल रहा है वो। तो यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ बैटरी। ये V1 है, ये V2 है। सो V1 - V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू I, and V1 minus V2 upon R2 is equal to I. So he's putting these two as equal because current flowing through them is same. So this becomes the junction potential, which is the potential between the both resistors, common potential point ये वाला। एक रेजिस्टर का लेफ्ट जो बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है वो V बैटरी है, दूसरा नेगेटिव के साथ जुड़ा है वो V2 है। तो दो रेजिस्टर हैं ये कॉमन बीच में, तो ये बीच का हम्म। निकालना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वेरी गुड क्वेश्चन विच यू विल सॉल्व नाउ। और Now you will exert. This is JEE Advanced 2018 question. अ,
ठीक है। कल। कल करे सो आज, आज करे सो अब। अब ऑड वंस। ऑड वंस। नो हार्ड वंस, कुछ नहीं है। ऑड वंस कह रहा हूँ मैं, ऑड वंस। पढ़ो। नो डाउट ये जी एडवांस क्वेश्चन है। पढ़ लो, फिर आंसर से समझ बड़ा में आ तो जाएगा। क्वेश्चन है आंसर से। पहले पढ़ लो भाई, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, देख लो जेई एडवांस की इसकी और लायक भी है ये कि नहीं है जेई एडवांस के। ऐसा तो नहीं तो जो अभी हमने क्वेश्चन कराया ये वही है। सर ये वही है। पढ़ा। दिखने से ही लग रहा है वही है। हाँ हाँ, बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ नहीं है जेई एडवांस का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। थर्मल इसके प्रॉपर्टीज अंदर है ना। इसके अंदर बहुत ही बढ़िया रोटेशन की तो चीज फिर है। भी। दैट थीटा इज ऑलरेडी नोन, सो इफ यू पुट योर क्यू एंड क्यू सेम हम्म। यूजिंग द फॉर्मूला, अगर ये जंक्शन टेम्परेचर 200 है, यहाँ पे 200 है, और ये 300 है, तो फॉर्मूला ही लगाना है ऊपर वाला भाई, जो कंपाउंड वॉल हाँ का ये सेम ही कभी तो लेफ्ट करा साइड है ये। इक्वल टू, हाँ देखो कितना आता है आंसर, देखते हैं। 6 नंबर आ जाएंगे तुम्हारे जेईई एडवांस में, मुबारक हो। ये नंबर कितनी रैंक आती है? 2018 का है। नहीं रैंक कितनी आएगी? मेरे का 6 नंबर आ गए। रैंक तो आ जाएगी कुछ ना कुछ तो। फोन नंबर ना लेकिन आ जाए मेरे लेकिन का धीरे धीरे आई क्लियर विल है। शो यू दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, नॉट जस्ट दिस। तो पता चले एडवांस में मेरा कहीं, एडवांस की रैंक में मेरा फोन नंबर ना लीक हो जाए। फिर क्या होगा? नहीं नहीं ऐसे ही बोल रहा था। समझे नहीं। फोन नंबर लीक होने से क्या होगा भाई? अरे रैंक के नाम पे, रैंक मेरी फोन नंबर जितनी ना आ जाए। अच्छा हो तेरी। मैंने सोचा यार फोन नंबर से क्या लेना देना इसका। अच्छा है। ओके ये छह इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन है। थे टोटल, 6 क्वेश्चन। ठीक है। बस हम्म। इतने होते हैं? हम्म। मार्क्स 4, नेगेटिव मार्क्स -2। हम्म। नहीं यार ये तो बहुत गलत हो गया। जो मर्जी नहीं लिख सकते आप, नहीं आता छोड़ दो। हम्म। अच्छा टाइम वेस्ट पार्ट करा 1 है दो। फिजिक्स का। पार्ट 2 पार्ट 3 होता है। मतलब मैथ्स होगी ना और केमिस्ट्री। हम्म। हाँ पार्ट 2 भी है। हम्म। अच्छा तो ये सब्जेक्टिव रहता है पेपर? हाँ सब्जेक्ट है। ओह नाइस। फिर ठीक है। हम्म। तो जस्ट पुट द कंपाउंड फॉर्मूला वेरी केयरफुली, जस्ट कॉपी इट केयरफुली एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। एरिया जो दिए हैं फिर एरिया ही लेना, सॉल्व करना है, कॉमन थीटा दे ही रखा है। एक तरफ 300 -200 लिखना है, एक तरफ 200 -100 लिखना है। दैट इज ऑल। फॉर्मूला जिसने सही टोपा उसका आ जाएगा। और बाई चांस एल सेम है, फाइल भी सेम है। लेंथ सेम है, तो एरिया से काय पता का जी लगेगा। एडवांस रह गया ये फिर। हाँ वही तो ऐसा भूत बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे थोड़ा थोड़ा ये एक्सपोजर जे आता है। मेंस के लेवल भी नहीं है, जी एडवांस से ठोक रखा है इसको। हाँ थोड़ा सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि कैलकुलेशन है, लेकिन हाँ मेंस के लेवल का भी नहीं है ये एक्चुअली, ध्यान से सोचा जाए तो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। 200 -300 ना। 300 -200 भाई। 300 -200 ओके। हायर टू लोअर, हाँ K1 के लिए। ठीक है। यहाँ पे 200 तो है, K2 तो यहाँ 200 भी 1 200 -100। यस, क्योंकि वो हायर टू लोअर है। हम्म। एरिया अलग अलग है मेरे ख्याल से, उसका रेडियस दिया हुआ है उसने। द एल भी सेम है रेडियस तो ऑफ एल तो बिगर कट ही गया सिलेंडर। है। ठीक है 4, ये 4 टाइम्स है, एरिया 4 टाइम्स है, ये 4 है।
नहीं नहीं, K2 है ना, 4 into, मतलब ये हो जाएगा ना। क्या दिया है, रेडियस इज ट्वाइस ट्वाइस है ना, तो ये 4A2 हो जाएगा ना फिर। द रेडियस ऑफ द बिगर सिलेंडर, नहीं। बिगर सिलेंडर, हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, दिस इज बिगर सिलेंडर, करेक्ट, हाँ, फोर तो ए टू वन ए टू मतलब 4a1। 4 टाइम्स एरिया, या रेडियस 4 टाइम्स है? पाई आर स्क्वायर से क्या होगा? अच्छा, अच्छा अच्छा। एरिया तो 4 टाइम्स हो जाता है ना उससे, हम्म। 4a1, 4A2 वट एवर जो भी है, मतलब 4a2 फोर क्या? ए हो जाएगा, 4A, हाँ ऐसे फोर मान लो। ए या ठीक है, डिवाइडेड ए से बाय, ए कट गया। हाँ दोनों का क्यूब बराबर कर दिया, ठीक है कट गया। ए से ए कट गया, तो K1/K2, ये दोनों भी कट ही गए, तो ये दोनों का 100 है, हम्म। तो ये आ जाएगा 4। आंसर बढ़िया। सही है, आंसर क्या बात कर दिया। है। तो थोड़े बहुत तो चक्षु खुले होंगे इस टॉपिक को लेके, प्लीज प्रैक्टिस। ठीक है सर। ठीक है, व्हाट वी विल डू टुमारो इज वी विल स्टडी रेडिएशन, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। एंड ट्राई एंड डू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आल्सो। हाँ ठीक है इसमें सर। यू टू assimilate and consolidate your knowledge, हम्म। that is all you need to do. If you do it, क्वेश्चन होगा आसान, लंबे लंबे सेंटेंस लिखे होंगे, करने को कुछ होगा नहीं उसके अंदर। तो देखो सर, ये जी एडवांस के क्वेश्चन में स्टोरी लिख दी पूरी। हाँ, और है कुछ नहीं अंदर से, खोखला क्वेश्चन है एकदम, किसी ने कहीं से टॉप टाप के इधर उधर से दे दिया है। हॉलोस्फीयर। हाँ बताओ, एक्चुअली। ठीक है जी, सी यू टुमारो देन, सेम टाइम कल। कल 10 बजे सर। ठीक है, अच्छा 10 बजे, ठीक है, सुबह कल के। छुट्टी है। हाँ जी, कल कल छुट्टी है मेरी। क्या कहते हैं, सैटरडे संडे, हाँ मंडे ट्यूसडे। ठीक है, गॉट इट, ठीक है। और बाय। फ्राइडे को भी मैं बस वेडनेसडे